I welcome you all on the behalf of Yog Krida Prabodhini. We will start our session with prayer. So please be prepared for prayer. Sit in meditative posture. Back should be comfortably erect. Eyes gently closed. Chin parallel to ground. Take a deep breath. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Open your eyes. Hello all. I'm going to give a brief note about our institute. Our institute, Yog Krida Prabodhini, had been started by respected Dr. Premchand Jain sir and Dr. Kiran Jain ma'am, along with some other professionals 25 years back. Yog Vidyan Prabodhini is affiliated by YCMOU, KKSU, and Tilak Maharshi Vidyapith for various courses like Yog Shikshak Diploma, BA, MA in Yog Shastra, and Yoga Therapy course by Ayush Mantralaya. Our institute has trained more than 1,000 yoga teachers, and some of them are working or rendering their services all around the world. Since past 5 years, many batches of YCB level 2, 3, 4 have been trained successfully with result more than 95%. Recently, we have started yoga therapy and completed 2 successful batches with more than nearly 98% result. Along with this, MA Yoga Shastra's third batch is also going on. We are also conducting Pratnya Samvardhan session to improve memory in children. We also conduct session on effective parenting, stress management, and regular yoga classes, yoga workshops, and therapy sessions at our institute. Thank you. I will request Shanti ma'am to give a brief intro about sir. Over to you, Shanti di. Thank you, Kirti. Good evening, everybody. I welcome heartily on behalf of Yoga Krida Prabodhini. As Kirti has just given the introduction of our institute, I will give introduction of our Dr. Jain. Dr. Premchand Jain, he is qualified psychiatrist, that is MD, psychiatrist with DPM, and also a yoga counselor. He is practicing psychiatry in Nasik for the past more than 40 years. And for the last 20 years, he is training yoga teachers through the institute that is Yoga Krida Prabodhini, of which he is the founder president. He's also practicing as a yoga therapist for the last 15 years and also is an examiner for BA and MA Yoga Sciences of North Maharashtra. I'm very happy to also share with you that he's co-authored many books, especially for beginners, for common people, that is Yoga for Beginners in English, and also in Marathi, that is Prathamik Yoga Sadhana Sarvansati. And he's also co-authored textbooks for yoga teachers in diploma course. These books are available both in Marathi as well as in English. I am very proud to share with all of you that he has successfully trained 10 batches of QCI, that is Ayush Department of Government of India level 2, and the success rate is more than 80%.
And recently he has completed, or our institute has completed successfully 2 batches of yoga therapy. And not taking much of your time, I hand over the now session to Dr. J. Sir, please continue. Hari Om. Hari Om to all. Am I audible? मैं आवाज आती है मेरी सभी को? Yes, sir. Hari Om, sir. हरि ओम। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम चालू कीजिए, ताकि आपके सुंदर फेसेस, सुंदर चेहरे मुझे दिखे और मुझे भी कुछ अच्छा लगे। Hello, sir. ओके, सभी को नमस्ते, हरि ओम। Hari Om. आज Hari Om, sir. Hari Om, sir. यस सरस्वती, हरि ओम सर। हरि ओम। आज हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर का पहला सीरीज में पहला लेक्चर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योग थेरेपी का सिलेबस जो है, अभ्यासक्रम जो है, वो कैसा है। अब योग के बारे में पूरे दुनिया में जागृति आ चुकी है। सभी को योग के बारे में उत्सुकता है। आप सभी लोगों को योग के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी भी है। और गत 8 वर्षों से अगर आप देखते हो तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है, और हमारे प्रधानमंत्री ने योग को पूरी दुनिया में मान्यता देने का काम किया है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जितना हम भारत में योग का अवलंबन करते नहीं है, उतना मुस्लिम देशों में उसका प्रचार और प्रसार हुआ है। और मेरे कई स्टूडेंट्स साउथ एशिया में या अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में योगा टीचर करके काम कर रहे हैं। अब ये योग थेरेपी का कोर्स जो है, ये भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट जो है, उसके माध्यम से चलाया जाता है। आयुष का मतलब है, आयुष के 5 इंडियन सिस्टम्स जो है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, एस यानी सिद्ध और एच यानी होम्योपैथी। तो ये जो 5 सिस्टम्स है, इनको प्रमोट करने के लिए, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए आयुष डिपार्टमेंट है। और गत साल में सरकार, भारत सरकार ने, जब कोरोना का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, उस वक्त योग थेरेपी करने के लिए सरकार ने पूरा अभ्यासक्रम तैयार किया है। और उस अभ्यासक्रम के माध्यम से गत 1-1.5 साल से अनेक संस्था ये कोर्स चला रही है। अब योग थेरेपी, आप में से कोई लोग डॉक्टर है, अलग अलग पैथी के भी डॉक्टर है, तो ये इतने सब होने के बाद में योग को थेरेपी के रूप में कैसा हम उपयोग में ला सके, ये हमें समझना है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री का एक संकल्प है कि सबका आरोग्य सही रहे। और योग आरोग्य यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं, अगर योग का हम अपने जीवन में उसको अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी ये भी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, फिर भी इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के इसमें, जब कोरोना चल रहा था
तब अगर आप हॉस्पिटल के बिल्स देखते, कई लोगों के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक भी बिल आए हैं। अगर वो उस बिल के साथ में, उस दवा के साथ में योग का अगर अवलंब करते तो जल्दी ठीक होते, कम पैसों में ठीक होते। ये हमने भी यहाँ प्रयोग किया है, हमने यहाँ बहुत से लोगों को उस वक्त योग की सीख दी है और सभी जगह हमारे इंस्टीट्यूट ने योग के जब पहला संक्रमण के ये आया था उस वक्त हमने योग के लिए कोरोना के लिए योग इसके बारे में वीडियो बनाकर जो यूनेस्को है, यूनेस्को के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम लिया था। उसमें हमारे ये 3 वीडियो वहाँ चल रहे थे। तो इतना सब बोलने के बाद में अब मैं आता हूँ कि ये योग थेरेपी का कोर्स कैसे, किस चीज से चलता है। इसमें 3 लेवल बनाए हुए हैं: असिस्टेंट योग थेरेपी, योग थेरेपिस्ट एंड कंसल्टेंट योग थेरेपिस्ट। अब असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट जो 12th पढ़ा हुआ है उसके लिए ये योग थेरेपिस्ट, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का कोर्स अच्छी तरह से है। अब एक बात आपको जो भी मैं अभ्यासक्रम में भी बताऊंगा, मगर सभी तीनों लेवल के लिए अभ्यासक्रम वही है, खाली उसकी डेप्थ जो है उसमें थोड़ा फर्क होगा और मार्किंग सिस्टम में फर्क होगा। योग थेरेपी जो भी कोई ग्रेजुएट है और जिनको योगा टीचर हुए हैं उनके लिए योग थेरेपी का कोर्स है। और जो कोई भी पैथी के डॉक्टर या MA विथ योग और MSc विथ योग है, दे कैन बिकम योग थेरेपी कंसल्टेंट। तो ये 3 लेवल उसमें है। अभी हम शुरू करते हैं। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। उसका नाम होगा योग थेरेपिस्ट या असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, जो भी कुछ आप लोगे। रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी जो है, देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी डिग्री होल्डर। देन ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका, तो कैन वर्क अलॉन्ग विद सर्टिफाइड फिजिशियन और सर्टिफाइड योगा कंसल्टेंट to give yoga therapy to all disorders, and there is no age bar. Anybody right from 15 to 80 years जो भी कोई है वो बन सकता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी है कि जॉब रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। संवाद जो है वो अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि उसको पूरा हिस्ट्री ही नहीं लेना है, तो उसके साथ में बात भी करना है पेशेंट के साथ में। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है, संवाद का जो स्किल है वो आपको अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वक्त में ये सब चीज़ें आपको पूरा करनी है। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ट्रेनीज। अब जो भी कोई आपके पास ट्रीटमेंट को आएगा उसके बॉडी लैंग्वेज भी आपको समझनी है। हर एक बात पेशेंट बताएगा ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके कुछ सिम्टम्स बॉडी को देखकर भी आपको समझना चाहिए। अब जॉब रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू पोजेस की क्वालिटीज क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वयं शिस्त होना चाहिए, आपका मैच्योरिटी होना चाहिए, पेशेंस एंड कंपैशन। ये बहुत महत्व की चीज़ है कि बातें आपको सुनना भी है उसका, और उसके बारे में मन में दया का भाव भी रखना है।
active listening. टाइम मैनेजमेंट बोल रहे हैं. तुमचं नाव टाका आणि अध्यक्ष टाकायचं म्हटलं क्लीनर नाव टाका. Please mute yourself. Language proficiency. आपको होनी चाहिए, बोलना वगैरह सब फ्रेंडली, और फ्रेंडली वातावरण में आपको ये सब चीजें करनी है. इसमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 800 आवर्स होगा. उसमें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 100 आवर्स होगा, जहां हम थियोरेटिकल सब होने के बाद में प्रैक्टिकली आपको पेशेंट्स के साथ में कैसा बिहेव करना है एक्चुअली वो सब बताएंगे. एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान इसमें डीप, जो डॉक्टर है उनको तो कोई सवाल नहीं है, मगर जो नॉन मेडिको है उनके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान डिटेल में होना जरूरी है. मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थेरेपिस्ट के लिए, अभी यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ थेरेपिस्ट के लिए 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल और थियरी. प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें आपको आसन वगैरह है या कोई क्रिया है वो करना है, शुद्धि क्रिया भी करवानी है, और ओरल उसमें होगा. वो दोनों मिलके 100 मार्क हो गए, और 100 मार्क के 100 MCQ हो गए. ये होगा थेरेपिस्ट के लिए. अगर कंसल्टेंट का आप करते हो तो 140 मार्क के यानी थ्योरी होगा. थ्योरी उसमें ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल कम होगा. ओनली 60 मार्क का प्रैक्टिकल होगा. और अगर आप इसका उल्टा असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट है तो 140 मार्क के प्रैक्टिकल होगा, और थ्योरी बहुत कम होगा, 60 मार्क्स का थ्योरी होगा. तो इस तरह इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसमें थ्योरी में 4 यूनिट हो गए, ह्यूमन योग और ह्यूमन बॉडी, यानी पूरा शारीरिक रचना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसमें सब सिखाई जाएगी. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी उसके लिए 20 मार्क का होगा. और एप्लीकेशन ऑफ योग थेरेपी इन ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट, उसके बारे में भी हमने एक लेक्चर रखा है, वो नेक्स्ट वीक में, यही वीक में होगा शुक्रवार को. एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इफेक्ट्स ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस, यानी शुद्धि क्रिया वगैरह जो आप करते हो, आसन प्राणायाम करते हो, इस तरह से. और 20 मार्क हो गए आपके प्रैक्टिकल के लिए. और प्रैक्टिकल क्या होगा वो अभी धीरे धीरे हम देखेंगे. फिर डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, यानी आपको आसन करके बताना होगा, शुद्धि क्रिया करके बताना होगा, जो भी प्राणायाम है वो करके बताना होगा. बाद में टीचिंग स्किल, क्योंकि ये आपको पेशेंट को भी सिखाना है, तो टीचिंग स्किल भी आपका देखा जाएगा. और इवैल्यूएशन स्किल, यानी उसने आपने जो कुछ बताया वो कितना उसने ग्रास्प किया है, ग्रहण किया है, वो भी आपको देखना है. उसके लिए 20 मार्क है. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो आपको सिखाया जाएगा, अगर आपके पास समझो डायबिटीज का पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या करना है ये आपको समझना है. उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और कौन सी क्रियाएं आप उनसे करवाओगे. और फील्ड एक्सपीरियंस जो आप प्रैक्टिकल करोगे यहाँ, उसके लिए 10 मार्क है. इस प्रकार से ये सब मार्क है. अब इसमें डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा. एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस इस पर होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, क्योंकि आसन करते वक्त कौन से मसल पर ज़्यादा स्ट्रेन आता है, कम आता है. अगर उसको कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए आप कौन से आसन उसको करवाओगे या ना करवाओगे.
वो आपको, इसलिए आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये सब बातें ये करना होगा। मसल की पूरा हिस्टोलॉजी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसा होता है, लिगामेंट्स क्या है, टेंडन्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद में ब्लड की जो है पूरा जो CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो आपको सिखाई जाएंगी। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा को, ये सब चीज़ें, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी। WBC से इम्यूनिटी आती है, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ दी जाएगी कि कौन से सेल्स कैसे इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। फिर बाद में हार्ट के बारे में, हार्ट के नर्वस सिस्टम के बारे में, कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और वो सब बारे में आपको मालूमात दी जाएगी। बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत महत्व की है। प्राणायाम करने के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रेस्पिरेशन कैसे चलता है, सांस कैसे लेते हैं, सांस छोड़ना कैसे होता है, ऑक्सीजन कितना लेते हैं, प्राणवायु कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ समझना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो आप सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना आप जो खाओगे कैसे उसका पचन होगा, शोषण कैसा होगा, और पूरे शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन का कार्य है वो कैसे चलेगा, उत्सर्जन के इंद्रिय कौन से है, क्या क्या काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, किडनी का भी आएगा, स्किन का भी आएगा। तो ये सभी चीज़ें, और उसके साथ में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर और होम्योस्टेसिस कैसे रखा जाता है, ये सब चीज़ें इस में आएगी। फिर बाद में एंडोक्राइन, इम्पोर्टेंट सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, कौन से हार्मोन काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, या कौन से हार्मोन से कम या ज़्यादा हुआ तो क्या तकलीफ होती है, ये सब सिलेबस में आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है स्पेशल सेंसेस, 5 जो सेंसेस है, ज्ञानेंद्रिय जो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फंक्शंस जो भी कुछ है वो आपको बताया जाएगा। फिर बाद में रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुएशन है, वो सब चीज़ें इसमें कवर की जाएगी। अब ये आया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मध्यवर्ती मज्जा संस्था। तो इसमें ग्रॉस एनाटॉमी उसकी बताई जाएगी, सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें नर्व्स कैसे कंडक्शन करते हैं, नर्व कंडक्शन कैसा होता है, न्यूरॉन का क्या स्पेसिफिसिटी है, कौन से फैक्टर, एक्शन पोटेंशियल जो है, वो सब चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाएगी। बाद में है न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर कैसे है, रिफ्लेक्सेस कैसे तैयार होते हैं, कौन से रिसेप्टर और कौन से ये जो है केमिकल्स कैसे काम करते हैं, न्यूरोकेमिकल जो है वो सब इसमें आपको बताया जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट कनेक्शंस की, अगर समझो आपके पास कोई लकवा वाला, पैरालिसिस वाला पेशेंट आता है, तो उसका कहाँ उसका लीजन होगा, कहाँ उसको प्रॉब्लम है, ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, मसल में कैसा देखना है, वो सब चीज़ें आपको समझाई जाएगी। और मेनली इसमें हाइपोथैलेमस जो इसमें जुड़ा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम से, तो वहाँ भी आपको सब समझाया जाएगा। फिर बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये बैलेंस जो है, एक हमारा काम ज़्यादा स्पीडली करवाने के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो मन को शांत रखने के लिए, शरीर को शांति के लिए होता है। तो वो सब इसमें आपको समझाया जाएगा। होम्योस्टेसिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि शरीर का अंदरूनी जो कोई रेगुलेशन है, अंदरूनी वातावरण जो है
हमारे शरीर में बाकी बहुत से कार्य चलते हैं, मगर वो सब के लिए इंटरकनेक्शन जो है कि अगर आपने ज़्यादा पानी पिया तो उसको पानी को बाहर कैसा निकालना है, या कम पानी पिया तो क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है, या बुखार आया तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में आती है, वो उसको होम्योस्टेटिक सिस्टम बोलते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस, हम समझते कैसे हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम ज्ञान ग्रहण कैसे करते हैं, और इस ज्ञान ग्रहण की कल शाम 4 बजे 3 बजे, इससे हमारी पर्सनालिटी को अगर अच्छा करना है, सुधारना है, इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनालिटी, ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में जो भी कुछ ज्ञान मिलता है तो वो क्या, वो किस ढंग से करना है, इसके लिए हमारा 2-3 लेक्चर हो गए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू योग, और फिर व्हाट इज द पर्सनालिटी, वो कैसे डेवलप करना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, वो सब बातें आपको समझाई जाएगी। बाद में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टोटल पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू योग एंड मॉडर्न साइकोलॉजी, हमारे यहाँ मेरे कुछ साइकेट्रिस्ट दोस्त भी है, वो इसको ज़्यादा समझाएंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी में और योग के अंदर पर्सनालिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या बातें आपको समझनी है, वो सब बताएंगे यहाँ। फ्रॉइड वगैरह जो सब साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट है वो आपको बताए जाएंगे इसमें। अब ये सब जो है वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र और योग वशिष्ठ, इन ग्रंथों में योग और आरोग्य के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। एक्चुअली हमारा पूरा जो साहित्य है, पुराने सभी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, वो बीमारी बताते ही नहीं। आयुर्वेद जैसा बोलता है कि साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जगने की कला बताते हैं, उसी ढंग से ये हमारे वेद है, उपनिषद है, हम कैसे सुखी और समृद्ध जीवन जिए ये सब बताते हैं। तो उसके बारे में गीता में भी बहुत सी बातें पता ही है, योग सूत्र पतंजलि के है, उसमें बोला है, उपनिषदों में योग वशिष्ठ जो इसने वशिष्ठ मुनि ने राम को जो उपदेश दिया था उसमें भी बहुत सी बातें बताई हुई है। फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए क्या क्या करना है वो सब बताया हुआ है। योगिक मेथड ऑफ एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो चैतन्य जिसे हम बोलते हैं, यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब है चैतन्य, चेतना। उस चेतना को जगाना है, उस चेतना को बढ़ाना है, उसके लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये सभी योगों का कैसे हमें उपयोग करना है, वहाँ से क्या क्या सीखना है, ये सब इस सिलेबस में आपको समझाया जाएगा। और दूसरा आगे का है योगिक डाइट। आपने डाइट के बारे में बहुत सा कुछ सुना है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और कभी जो भी कुछ बोला हुआ है कि आप जितना खाते हो उसमें से 50% तो डॉक्टर के लिए खाते हो। फिर बाद में मराठी में एक ये है अन्न तारी अन्न मारी अन्न नाना विकारी, तो इसका मतलब ये है कि अन्न ही आपको जीवन देता है, अन्न ही मरण भी अन्न ही देता है। अगर आपने जो नहीं खाना है वो खाया या ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में खाया तो भी आपका सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए अन्न नाना विकारी भी उसको बोला हुआ है। और बहुत सी बारे अन्न के बारे में बहुत सी कहावतें हैं, बहुत से सब चीज़ें हैं। गीता में तो हर एक इसमें बोला है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब कि योग अगर दुख हारक होना है तो कंडीशंस अप्लाई। खाली योग करोगे और बाकी चीज़ें आप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कंडीशंस अप्लाई। कौन से कंडीशंस बोला है? युक्त आहार, योग्य प्रमाण में आहार का सेवन करना चाहिए। फिर
युक्त विहार आपका घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़े वगैरह सभी ऋतु के अनुसार होना चाहिए, इसलिए युक्त विहार। युक्त स्वप्नावबोध से नींद भी आपकी अच्छी होना चाहिए। आपको पता है अगर नींद बराबर नहीं है तो कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, और फिर बोला है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी आपका कार्य काम भी सही ढंग से मन लगा के होना चाहिए। करना है इसलिए नहीं करना है, तो उसमें जी जान लगा कर कार्य करना है। तो इस तरह से गीता में भगवान ने बोला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएगी, और फिर उसको अष्टांग योग, कर्म योग, न मंत्र योग, जो भी कुछ है उसके लिए भी उसमें जो जो कुछ बताया है वो बताते जाएंगे। फिर डाइट के बारे में देखने के बाद में हमारा खाना कैसा है ये देखने के बाद में कंसेप्ट ऑफ, ये दूसरा यूनिट उसमें आया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी, कि योग का कंसेप्ट हमारे भारतवर्ष में क्या है। और आरोग्य, आपको पता है, सभी लोगों को पता भी है कि WHO की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इट इज़ नॉट ओनली द mere absence of disease, but हमारा वेल बीइंग एट 4 लेवल्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है और सीखना है, उसके बारे में कैसे उसको उपयोग में लाया जाए, उसका अवलंब किया जाए, वो भी यहाँ बताया जाएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो है आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सिद्ध, ये यहाँ सब आपको बताए जाएंगे। यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम इन रिलेशन टू योग एंड हेल्थ। अब यहाँ एक बात आपको समझना और ये करना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम फुल फ्लेज्ड या परफेक्ट नहीं है। उनको एक दूसरे के साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो सभी का अच्छा जो है आप उसको ले सकते हो। अब यहाँ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि जो बताया हुआ है, आदि जो बीमारियां और व्याधि जो बीमारी, अनादि जो बीमारियां, उनको बोला है। तो आदि और व्याधि का कंसेप्ट जो है योग वशिष्ठ का, उसके बारे में आपको सीखना है, समझना है। और रोल ऑफ योग इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेयम दुखम अनागतम, पतंजलि ने बोला है। इसका मतलब ये है कि बीमारी होने के पहले, दुख आने के पहले ही ऐसी कुछ क्रिया कीजिए कि दुख को हम मार सके, दुख को दूर कर सके। तो हेयम दुखम अनागतम, हेय मतलब उसको दूर करना, मारना या नष्ट करना। दुख पता है, अनागत जो आया नहीं है, आ गया तो फिर उसको तो इलाज आपको करना पड़ेगा, मगर जो बीमारी आपको नहीं हुई है उसको आने ही नहीं देना, ये भी रोल ऑफ योग इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आ जाता है। फिर तपत्रय, क्लेश और अंतराय, ये सब जो है पतंजलि ने बताए हुए। क्लेश क्या है, 5 प्रकार के क्लेश बताए हुए हैं और 9 प्रकार के अंतराय बताए हुए हैं, कि जिससे हमारा आरोग्य में बाधा आ जाती है या हम योग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसको उस वक्त योग को कैसे किया जाए वो यहाँ समझाया जाएगा। फिर बाद में आपको त्रिगुण सत्व रजतम, इसके बारे में भी आपको समझना है। पंच महाभूत, आकाश पता है आपको, पंच पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। तो ये जो है ये भी सब सिखाया जाएगा, और इनका उपयोग ट्रीटमेंट में कैसे करना है। एक ही बात मैं बोलता हूँ कि आप जब धूप में से बाहर आते हो, बाहर की धूप में से, तो ठंडा पानी पीने को मिले या हाथ पैर अगर ठंडे पानी से धोए तो आपको फ्रेश लगता है। तो ये जल का उपयोग हमारे ट्रीटमेंट के लिए हुआ। उसी तरह से कभी हम उसका वेपर्स बाफ लेते हैं, गले में कुछ तकलीफ है तो
तो उसका भी क्या उपयोग है, तो ये सब इस पंच महाभौतिक उपचार में आपको बताया जाएगा। फिर पंचकोश और पंचप्राण, इसके बारे में। पंचकोश जो है हमारा शरीर 5 लेयर्स में है, या उसके अस्तित्व के 5 प्रकार बोले हुए हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, तो उसका वहाँ पूरा जिक्र किया जाएगा। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम कैसे बीमारियां दूर कर सकते हैं, तो वो यहाँ से बताया जाएगा। उसके लिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, ये पतंजलि का सूत्र जो है, किससे मैत्री करनी है, किससे करुणा रखनी है, आनंद कहाँ लेना है और उपेक्षा कहाँ करनी है, ये सब ये बताया जाएगा यहाँ। कंसेप्ट ऑफ भाव और भावना कैसे है, हेल्थ और वेलबींग में कैसा उसका उपयोग किया जाएगा, वो आप सीखेंगे बाद में। कंसेप्ट ऑफ आहार विहार आचार और विचार, बीमारी खाली कुछ जंतुओं से या कुछ एक्सीडेंट से ही नहीं होती है, हमारे विचारों से होती है, आचारों से होती है। ये सब चीजें आपको सीखनी है, और इन सभी का उपयोग आपको जब भी किसी को ट्रीटमेंट देते हो तो उस वक्त उसका उपयोग कैसे करें, ये सब सिखाया जाएगा। खाली आहार अच्छा है या खाली विहार अच्छा है, इससे नहीं होता है। फिर कंसेप्ट ऑफ ओके, हाँ हाँ मैत्री करुणा, ओके। शुद्धि क्रिया, हठ योग में शुद्धि क्रिया पहले करने को बोला हुआ है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो ही आप योग की साधना कर सकते हो, तो उसका प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स शुद्धि क्रिया षट कर्म को बोला हुआ है। तो ये सब षट कर्म के बारे में बोला हुआ। खाली शरीर शुद्धि नहीं है तो कर्मों की शुद्धि भी कैसे करना है, घट शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि कैसा करना है, स्नायु की शुद्धि कैसा करना है, ये सब आपको समझाया जाएगा। प्राणायाम के अलग अलग प्रकार, फिर इंद्रिय और मनोशुद्धि, प्रत्याहार जो है वो अष्टांग योग का 5वां अंग, उसके बारे में भी आप समझोगे, सीखोगे। मन बुद्धि अहंकार और चित्त शुद्धि जो है धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया के साथ से ये सब चीजें आप समझोगे। फिर ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट जो है इसमें भगवत गीता, तो भगवत गीता में क्या क्या बताया हुआ है, थेरेपी के लिए उसको क्या क्या कैसे यूज करना है, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन या योग कर्मसु कौशलम, ये सब चीजें जो बताई हुई है, तो वो सब चीजों के बारे में आपको भगवत गीता ने पूरा कुछ सीखना नहीं है, उसके कंसेप्ट्स क्या है और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बीमारी कैसे होती है वो भी बताया हुआ है। तो उसके लिए सब आप धीरे धीरे सीखोगे। तो सांख्य योग जो है भगवत गीता में बताया हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोला जाएगा। और भगवत गीता में सभी उपनिषदों का सार है, तो ये जो सार है इसको आपको समझना है और उसका यूज कैसे करना है, किस स्थिति प्रज्ञ किसे बोला हुआ है, उसके क्या क्या गुण हैं, वो सब बताए जाएंगे। आत्मा और जीवात्मा यानी खुद और परमेश्वर कैसे है, किससे बोलना है, ये सब भगवान ने जो कुछ बताया हुआ है वो यहाँ हम समझेंगे। और फिर भगवत गीता का जो भी इन शॉर्ट होगा, यानी भगवत गीता के लिए भी 5-6 लेक्चर्स हो गए। फिर जगत और संसार किसे बोला जाता है, भगवत गीता में बोला है। साइकोथेरेपी कंसेप्ट ऑफ भगवत गीता, ये तो आपको पता है। भगवत गीता में पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग है कि उसके जो भी कोई सिम्टम बोले हुए हैं वो सभी सिम्टम डिप्रेशन के हैं, कि अर्जुन खुद उद्विग्न हो गया था कि मेरे ही सामने जो बैठे आप पर भाव और कर्तव्य उसका जो था वो सब वो भूल गया था। भगवान ने उसी को उसके कर्तव्य कि तू क्षत्रिय है और ये सब क्षत्रिय का क्या धर्म है उस हिसाब से आपको चलना है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ योग, साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, ये तीनों चारों योग गीता में है, तो उसमें क्या क्या बताया वो देखेंगे। आहार के बारे में मैंने अभी बोला है कि आहार गीता में बहुत अच्छी तरह से उसका किया है। त्रिगुण भी वहाँ बताया हुआ है।
तो ये इम्पोर्टेंस है ही आपको कि भगवत गीता में डे टू डे लाइफ में कैसा होगा। और इसके लिए परसों हमारे एक स्वामी जी जो है रामकृष्ण मिशन के, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर पतंजलि योग सूत्र, उनका एप्लीकेशन क्या है, समझना क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। कंसेप्ट ऑफ वृत्ति, नेचर, ये सब अभ्यास, और कैसे वृत्ति का निरोध कैसा करना है अभ्यास वैराग्य से, और समाधि की अवस्था तक कैसा जाना है, ये सब समझाया जाएगा। और इसके ऊपर ईश्वर प्रणिधान जो है कि यानी सरेंडरेंस टू द गॉड, ये कैसे करना है वो सब बोला जाएगा। इसके बारे में पतंजलि योग सूत्र के बारे में बहुत डिटेल आपको समझना है, और उसका यूज कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर समाधि का ये बारे में सब बोला मैंने। और योग सूत्र जो है उसमें जो तीसरा पाद है विभूति पाद, अलग अलग सिद्धियां कैसे प्राप्त करना है, तो वो सिद्धियां के बारे में जो भी कुछ है वो सब यहाँ आपको सिखाया जाएगा। फिर बारे में संयम, संयम का मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि। तो किस चीज के ऊपर धारणा ध्यान हम अगर करते हैं तो क्या क्या हमें उसका फायदा मिलेगा। तो अलग अलग यहाँ संयम किस पर करना है, मैत्री पर करना है, करुणा पर करना है, चंद्र पर, नाभि चक्र पर किया तो क्या फायदा मिलता है वो बताया जाएगा। और फिर अंत में कैवल्य, यानी अंतिम अवस्था समाधि की, उसे कैवल्य बोला हुआ है। तो वो सब कर्म, वासना, स्मृति, संस्कार, इसके बारे में वहाँ बताएगा कि सिद्धियाँ कैसे मिलती है। और सिद्धियाँ मिलने के बाद में ये पतंजलि की खासियत है कि पतंजलि बोलते हैं कि सिद्धि मिलाने के लिए आप बहुत साधना करो, और सिद्धि मिलने के बाद बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ दो। तो वो छोड़ने का कैसा है वो सब बताएगा। मिलाना और छोड़ना, ये भी सब बारे में आपको समझना है। फिर योग वशिष्ठ में क्या क्या बोला हुआ है वो बताएगा। योग की डेफिनेशन क्या है और कंसेप्ट ऑफ माइंड क्या है। योग वशिष्ठ में अच्छी तरह से बोला है कि मन प्रशमना उपाय, योग मन प्रशमना उपाय। योग क्या है कि मन को शांत करने का उपाय है। ये योग की एक जो डेफिनेशन है वो योग वशिष्ठ में बताया गया है। और फिर ज्ञान का कंसेप्ट क्या है, सप्त भूमिका क्या है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। फिर विवेक, सारासार बुद्धि जहाँ है, सारासार विचार जो है उसको विवेक बोला हुआ है। वो बोल रहा है काकभूषण की स्टोरी आपको समझनी है। फिर आदि व्याधि वो सब देखा हमने। प्राण और प्राणायाम के बारे में बहुत बोला है। और फिर आगे जाते हैं तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट जो है कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस। हठ योग की वजह से क्या क्या हमारे शरीर में और मन में बदल होते हैं। षटकर्म से सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, ये सब कैसे करना है वो इसके बारे में बताया जाएगा। फिर जो भी कुछ हम शुद्धि क्रिया करते हैं उसमें नमक और पानी का यूज करते हैं, तो नमक पानी क्यों करना है वो भी आप समझेंगे। फिर आगे चलते हैं कि कौन सी क्रिया का कौन से सिस्टम पर कैसे फर्क पड़ेगा। यानी आप समझो वमन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर, या जलनेति या कपालभाति करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे फर्क होगा, ये सब इसमें आपको सीखना है। और ये सभी शुद्धि क्रिया आपको सीखनी है, करनी है और करवानी भी है। पहले आप करोगे, हम आपको सिखाएंगे। और शुद्धि क्रिया में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, आराम से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे उसके इफेक्ट आते हैं। और साल में 2 बार तो हम शंख प्रक्षालन भी करवा लेते हैं कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन करने का, तो वो बारे में देखेंगे। फिर आसन के बारे में, आसन की फिजियोलॉजी कैसे है, ये सब मैंने शुरू में बताया था। तो ये सब आसन के बारे में, उसका कैसा इफेक्ट होगा, क्या क्या करोगे, स्ट्रेचिंग कैसा करना है, आसन करते वक्त आपको मसल
को स्ट्रेंथनिंग करना है, मसल को सशक्त करना है, मजबूत करना है, ताकि आप उठना बैठना या जो कमर का दर्द है वो भी ना हो। ये सब चीजें आसन के सहायता से कैसा करना है वो आपको बताया जाएगा। फिर प्राणायाम कैसे करना है, मैकेनिज्म क्या, वो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो बोला है, तो वो सब आपको समझाया जाएगा। और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा, अगर हमारा सांस यानी प्राणायाम अच्छी तरह से करें, ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगा तो क्या होगा, ये भी आपको समझना है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो आपके हायर फंक्शंस जो है वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से चलेंगे। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्सेस कैसे आते हैं, ये सब प्राणायाम में आपको डिटेल में उसके 8-10 लेक्चर्स होंगे और वो उसमें सब करवा भी लेंगे और उसकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों आपको समझाई जाएगी। महत्व का यह है। फिर मेडिटेशन, ध्यान कैसे करना है, अलग अलग ध्यान की सिस्टम कैसा है, ध्यान करने के बाद में तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, वो सब यहाँ आपको समझना है। फिर मुद्रा और बंध जो है, 3 बंध मुद्रा भी बहुत सी है, वो सब मुद्रा आपको सीखनी है और उसका उपयोग भी करना है। फिर मंत्र, ये अभी यहाँ प्रैक्टिकल सिलेबस में आएगा। तो प्रार्थना कैसे बोलनी है, प्रणव यानी ओंकार जप भी, इसके बाद में मैं एक आधा घंटा ओंकार के बारे में आपको बताऊंगा, उस वक्त आप कैसे उसको करना है वो भी देखेंगे। फिर बाद में रोज की जिंदगी में, डेली लाइफ में हमारा प्रार्थना का क्या महत्व है और कौन सी प्रार्थना कौन से वक्त में बोलनी चाहिए और प्रार्थना क्यों बोलनी चाहिए उसके बारे में होगा। षटकर्म यानी क्लींजिंग प्रोसेस जो है, ये सभी यहाँ जो लिखी हुई है ये सभी आपको करनी है और करवानी भी है। फिर सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार, ये सब आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो है ये योग का पार्ट नहीं है, मगर आपने स्वामी ब्रह्मचारी क्या सूक्ष्म कार्तिकेयन स्वामी ने बताया है, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी के योग शिक्षक थे, उन्होंने उसका बहुत प्रचार प्रसार अच्छी तरह से किया। फिर योगासन कौन से चारों स्थिति में, खड़े रहकर, बैठकर, सोकर, पेट के बल और पीठ के बल, कौन से आसन करना है और उसके फायदे वगैरह वो सब आपको प्रैक्टिकल इसमें करवाए जाएंगे। फिर प्राणायाम जो है, अलग अलग प्राणायाम कौन से अष्टकुंभक जिसे बोला हुआ है, हठ योग में बोला है, हठ प्रदीपिका में भी बोला है, हिरण्य संहिता में बोला है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो सब आपको यहाँ समझाया जाएगा। मेडिटेशन होने के बाद में बंध मुद्रा, वो सब जो थ्योरी में था वो प्रैक्टिकल में होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट योगिक काउंसलिंग करने वाले बहुत से लोग हैं, मगर वो काउंसलिंग आया जाता है खाली आपके करियर के लिए या कुछ पढ़ना क्या है क्या नहीं उसके लिए होता है। तो यहाँ आपका हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा, आरोग्य कैसा रहेगा, और आपके अपने शरीर पर कैसे ध्यान देना चाहिए, शरीर आपका है उसका पूरा तरह से केयर करना कैसे करना, ये सब इसमें आपको बताया जाएगा। बहुत से बार लोग हमें भी बोलते हैं एज ए डॉक्टर कि डॉक्टर मैंने अगर तीखा खाया तो मेरा एसिडिटी बढ़ जाता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई तीखा मत खाओ। वो ये बोलना मुझे बहुत आसान है, पर लोग बोलते ये बोल तो दिया आपने, पर फिर बगैर तीखा नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाना खाएंगे, घर में अलग अलग खाना पकाना होगा वगैरह, बहुत सी बातें उसमें आती है। तो वो सब इसके बारे में कैसे आप लोगों से पेश आए, लोगों से कैसे बात करें, ये सब काउंसलिंग में आएगा। एडजस्टमेंट करना है आपको, तो कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। बहुत से बार बोलता है कि मेरे मन जैसा नहीं होता है, तो हर एक चीज़ आपके मन जैसी नहीं होगी।
ये भी आपको उनको समझाना है। तो ये सब चीजें और ये डिटेल में आपको समझाया जाएगा। फिर बैक एक, नेक पेन, आर्थराइटिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब चीजें जो है ये कॉमन लोगों के प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाओगे तो उनके 50% पेशेंट बैक एक को या नेक पेन, आर्थराइटिस की तरफ से होते हैं। तो उनको आप योग के माध्यम से कैसे रिलीफ दे सकते हो, उनकी बीमारी कैसे कम कर सकते हो, उनका दर्द कैसे कम कर सकते हो, ये सब आपको समझना है और करवाना भी है। फिर अलग अलग बीमारियां, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ये सब जो चीजें हैं इनका डाइट भी कैसा हो और यहाँ कौन सी क्रियाएं करे और क्या पथ्य लगा पाले, ये सब आपको समझना है। फिर बाद में कि अलग अलग बीमारियां, यहाँ सब मैंने ये किया है कि कार्डियोवास्कुलर ने हार्ट की बीमारी में क्या क्या करना है, माइग्रेन, हेडेक वगैरह क्या करना है, तो ये सब इसमें आपको सिखाना है, सीखना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत सी बीमारियां होती है, एसिडिटी होती है, अल्सर होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब जो चीज़ें हैं तो इनको कैसे छुटकारा किया जाए अलग अलग। और अभी आजकल ये पीसीओडी और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है या डिसीज, तो इसके बारे में बहुत से लड़कियों का या यंग लेडीज का आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हुआ है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और फिर ये सब चीजें देखने के बाद में अभी हम आते हैं कि एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में जो जो भी कुछ है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, उसमें क्या क्या हमें खबरदारी लेनी है। डायबिटीज है या थायराइड के प्रॉब्लम बहुत है, और महिलाओं में प्री मेंसेस के पहले, ड्यूरिंग मेंसेस और पोस्ट मेनोपॉज, ये सभी चीजें जो है ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, तो वो सब देखना है आपको। फिर बाद में योगिक डाइट और एंडोक्राइन सिस्टम के बीमारियों में कैसा करना है, कौन सा डाइट लेना है, ये सब डाइट के बारे में आपको ज़्यादा बताया जाएगा। रोल ऑफ योगिक डाइट इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में कैसा खाना है, कितना खाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें एज वाइज जो भी है, बच्चों के लिए क्या करना है, बूढ़ों के लिए क्या करना है, यंग एज में क्या करना है, वो भी यहाँ आपको बताएंगे। फिर बाद में असेसमेंट के लिए एंथ्रोपोमेट्री यानी हमारे शरीर में जो भी कोई चीज़ें हैं वो नॉर्मल बॉडी के जो मेजरमेंट्स है, हाइट वेट तो है ही है, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, पल्स वगैरह कैसे लेना है, बाद में ये सब चीज़ें जो है बीएमआर, ये सब चीज़ें आपको समझाई जाएगी। बॉडी इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालना है। ये आसन के बारे में सब है। बाद में ये अगर आपको ईजी ईसीजी समझना नहीं है, मगर उसके बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान होना जरूरी है। मसल फिजियोलॉजी, सीओजी, एलओजी, ये सब जो है ये एंथ्रोपोमेट्री और बायोमेट्री में आती है, तो वो सब आपको समझाई जाएंगे। बायोमैकेनिक्स कैसे होता है, कौन से आसन का शरीर पर कहाँ परिणाम होगा और कैसे करना है, उसके बारे में बायोमैकेनिक्स में ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत से लेवल पर बहुत सी चीज़ों में आपको क्या क्या करना है, ये हमारा इंस्टीट्यूट का फोटो है। योग क्रीड़ा प्रबोधिनी और नरेंद्र सिंह दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और सामने अच्छी तरह से गार्डन है जहाँ आप अनेक उपचार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपका भी कोई सिलेबस के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अभ्यासक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में अगर आपको कोई सवाल है
आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? सुवर्णा जी नहीं, दीपाली, अर्चना, मनीषा, किसी को कोई सवाल? इतना आप सब समझ गए या कुछ नहीं समझे? ऐसे भी दोनों ही चीजें हो सकती है। यस अर्चना जी। थिअरी तर 20-20 मार्क्स असे डिस्ट्रीब्युशन आहे ना? काय? एक एक टॉपिक वर 20-20 असे मार्क्स आहे ना थिअरी? Yes, Dr. Reina, this is syllabus of Government of India Ayush Department, and I have posted this in the group. I don't know whether you joined group later or earlier. I will again put it today only, repost it. What Government of India Ayush Department has given this syllabus. ये सभी अभ्यासक्रम जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा निश्चित किया है उसी प्रकार से हम सिखाते हैं, उसी प्रकार से आपकी एग्जाम होती है और उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो एग्जाम लेता है। हम खाली सिखाने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। और जब आप पढ़कर तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए तो हम एग्जाम ये करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है मेनली इट विल बी इन द इवनिंग 6 to 8 एंड कोर्स विल बी 5 to 6 months। 4 months हम तैयार करते हैं, 4 months में सिखाते हैं, 1 महीना उसका रिवीजन, और फिर इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर कॉन्फिडेंस। मंडे टू फ्राइडे इसका ये होगा, सैटरडे कुछ नहीं होगा। संडे या सैटरडे या संडे मॉर्निंग में प्रैक्टिकल्स हो गए। प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं होंगे, प्रैक्टिकल जो है वो एक ही दिन हफ्ते में होगा। सर पेपर कौन से लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में हम यहाँ सिखाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में सिखाएंगे। आपका क्वेश्चन पेपर भी हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अगर आप हिंदी में देते हो, एग्जाम देते हो, तो आपके सर्टिफिकेट पर मीडियम लिखा हुआ होगा हिंदी, और ऑल ओवर इंडिया यू कैन प्रैक्टिस। अगर आपका अंग्रेजी में आप देते हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन प्रैक्टिस। यस, इट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड 1 week हम यहाँ कम्युनिकेशन यानी कंडक्ट सेशन जैसे करेंगे। कुछ पेशेंट्स को हम बताएंगे आपको, और पेशेंट्स या फिर आप पेशेंट हम बोलेंगे आपका पेशेंट चूज कीजिए, उसको क्या क्या देना है उसकी तकलीफ के हिसाब से आप बोलेंगे, तो ऑनलाइन भी उसका डिस्कशन हो सकता है। मगर हमारे दोनों बैच जो हुए थे वो पूरी तरह से ऑनलाइन हुए थे। वहाँ के जो भी कुछ हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट है, कल वे आपसे बातें करेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस वो बोलेंगे। 2-3 स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैंने ऑनलाइन डाला हुआ है ग्रुप में, वो भी आपसे बात करेंगे कल। एनी मोर क्वेरी? सर मी बोलू का? हरिओम. हरिओम, बोल स्वरूपा. हा सर, आता आपण काय करणार आहोत, म्हणजे योगा थेरपी होणार, थेरपिस्ट होणार आहोत की कन्सल्टंट, त्याचं कसं हे करायचं आपण? म्हणजे ते आपल्यावर डिपेंड आहे का की काय, आपल्याला चॉईस आहे का ती? बघा, तुम्ही
जर डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर किंवा कुठल्याही पॅथीचे डॉक्टर असाल तुम्ही कन्सल्टंट होऊ शकताय. मग तुम्ही कन्सल्टेशन करून योगा थेरपिस्ट किंवा असिस्टंट योगा थेरपिस्ट सांगून त्यांच्याकडनं तुम्ही ट्रीटमेंट करून घेऊ बरं. शकता. ग्रॅज्युएट असाल तर यू कॅन बिकम थेरपिस्ट अँड यू कॅन ट्रीट देम अंडर डॉक्टर्स ऑब्झर्वेशन. इट इज yes, Okay, Dr. okay. Raina, what was your question? Yes, we will be giving you the recording. All the sessions will be recorded and they will be shared with everyone. They will not only miss classes, but for your revision also they will be useful. Yes, Abeda. Quick queries? Yes, sir. Any queries? No, I was just listening to you. Okay. It's good. The syllabus is very comprehensive. So, I have tried to make it simpler and the coverage is very vast. yeah. Sometimes I might have to just be silent because some emergency patients. Otherwise, I'm very interested and I want to follow you. Yeah, I got many even postgraduate consultant doctors who are students, and they are practicing yoga, and now they have finished this and doing MA in Yoga Shastra. Okay, sir. And fees for other for fees you contact me personally, because it is not nice for someone I might be giving some concessions or something. Depends on how much you are educated and the thing. According to YCB, this is level 5, 6 and 7. 5 is assistant yoga therapist, 6 is yoga therapist, and 7 is yoga therapy consultant. For consultant, you need more theory and in detail theory. Practical things not much important for the consultant. Only thing he should know which are the kriyas or which are the processes to be followed for whom. That is again important. किसके लिए कौन सी प्रक्रिया आप यूज करनी चाहिए. किसी डॉक्टर ने पूछा है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, तो वो allopathic any doctor, because why they are consultant, because they know the anatomy physiology. That's why they can be consultant for this. Or one who has done post graduation in yoga, he can also be consultant. But I will suggest you first become yoga therapist and then go for the consultant. Once you get some knowledge about the therapy, then details we can learn later on. Dr. Raina, the course, whatever, wherever, if somebody in the group is doing consultant exam or consultant course, duration is the same. We will be giving more knowledge, and after the course is finished, you can decide whether you want how much knowledge you have gone or how much confidence you have got. Then you can either those who are less, those who are not more graduate, they can go for assistant yoga therapist. Others can go
for consultant or therapist. We will be giving knowledge more than consultant level also. So whatever and our experience and all the exams is, my students always blame me कि आपने इतना सिखाया, इतना तो कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं है. तो हम यहाँ सिखाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान मिले. अगर आप किसी को कोई सवाल नहीं है तो 2 मिनट के गैप के बाद, या देयर आर मेनी बुक्स, प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा. अगर आप यहाँ आओगे तो आपको हमारे टीचर शांति है, कीर्ति है, ज्योति है, ये सब सिखाएगी आपको. ऑनलाइन भी सिखाएगी और ऑफलाइन भी सिखाएगी. देयर आर मेनी बुक्स. पतंजलि योग सूत्र के लिए अलग बुक है, गीता के लिए अलग बुक है, तो वो सब रेफरेंस बुक्स है. हम आपको हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे. लेक्चर्स का जो भी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि सभी बातें इसमें टेक्स्ट में होगी ऐसा नहीं है. काले आवे के कुछ अभी ओंकार के बारे में कुछ हम सीखेंगे. वक्त है हमारा आधा घंटा. आर यू रेडी? कि ओंकार का थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे यूज करेंगे वो बाद में सीखेंगे. पहले व्हाट इज ओंकार, उसके बारे में थोड़ा मालूमात लेंगे और फिर उसका डिटेल ज़्यादा जो भी कुछ है वो लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा. तो ओंकार एज ए थेरेपी टूल. ओंकार का उपयोग ट्रीटमेंट के लिए कैसा किया जाएगा ये समझने के लिए हम थोड़ा, मैंने ये बताया था हमारे इंस्टीट्यूट का, आगे जाते हैं. ओंकार भारतीय संस्कृति की पूरे दुनिया के लिए एक अच्छी देन है, जिसके बारे में, ओंकार के बारे में वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सभी जगह उसका उल्लेख किया गया है. और ये जो ओंकार है हजारों साल से कम 10 से 15 हजार साल पुराना, हमारे पूरे प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है. और वो आज जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया था उसका आज भी अनेक जगह रिसर्च किया गया है. मेडिकल साइंस में रिसर्च किया गया है. और अभी बहुत से लोगों ने पूछा भी कि क्या होगा, तो अभी बहुत से हॉस्पिटल्स में योग का डिपार्टमेंट शुरू हो गया है. आपको अगर पता है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, AIMS, तो वहाँ भी योग का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ योग के द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है. तो ये सब क्यों होता है, तो ये हमारे संशोधन में सिद्ध किया हुआ है और योग ही आपको ये करना है. तो ओंकार जो है इसका पहला सबसे ज़्यादा पुराना उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है. और अलग अलग ये ओंकार भी जो है ना अलग अलग तरीके से लिखा गया है. या मैंने वो लिखा नहीं है, मगर
आजकल हम लिखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है, जगह वर्टिकल भी योग ओंकार लिखा हुआ है। और बालाजी तांबे, अगर आप लोनावाला के पास में उनका आश्रम है वहां जाओगे तो वहां वर्टिकल ओम लिखा हुआ है। अब ये योग के बारे में एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ ताकि योग लोगों को, ये ओंकार लोगों के लिए, सॉरी अभी मेरे मुंह में योगी आ रहा है, मगर ये जब जब मैं योग बोल रहा हूँ तो ओंकार के बारे में ही बोलूँगा। तो ओंकार दुनिया में कैसे एक्सेप्ट किया और दुनिया को इसका महत्व कैसे पता चला, तो एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी 2 मिनट में बताने की मैं कोशिश करूँगा। कि आपको पता है अभी भी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चला है उसमें रशिया और अमेरिका दोनों साथ में एक दूसरे पर ये करने का प्रयत्न कर रहे। तो ये जो दो महासत्ता थी, स्पेशली 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, ये दोनों महासत्ता एक दूसरे पर बहुत, एक ने कुछ किया तो तुरंत ये करते थे और हर एक जगह ये महासत्ता काम करती थी, खाली पॉलिटिक्स में या इसमें शस्त्रास्त्रों के लिए ही नहीं, संशोधन में भी थी, खेलों में भी था, ये सब जगह था। तो 1960 के पहले जो ओलंपिक्स होते थे उसमें ज़्यादा मेडल्स कौन लाता है, तो अगर अमेरिका ने 1 नंबर किया तो 2 नंबर रशिया होता था, और 1 नंबर रशिया हुआ तो 2 नंबर अमेरिका होता था। ये हमेशा का ये था। मेरे ख्याल से 68 में या 64, सब कहीं, तो मुझे याद नहीं अभी पूरा। उस वक्त जर्मनी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, और जब जर्मनी ने इतने मेडल जीते तो तुरंत ये दोनों महासत्ता है उनके, KGB और क्या अमेरिका का ये जो था, क्या था अमेरिका का भी जो कुठला होता, CIA, KGB रशिया का था, CIA, हाँ CIA बराबर है। तो CIA और इनका ये हुआ कि कैसे ये हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ। पहले तो उन्होंने बोला कि ये लोगों के लिए स्पेशल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्या, स्पेशल कोई डाइट है क्या, और बहुत से कुछ है। तो उन्होंने देखा कि ऑल इंस्ट्रूमेंट दे वर यूजिंग आइदर मेड इन USA और USSR, सो देयर इज नथिंग कि ओरिजिनली कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। फिर बोला कि इन्होंने एग्जाम, जो कोई जजेस थे वो पार्शलिटी किया था, तो सभी जजेस में मैक्सिमम जजेस आइदर अमेरिकन और रशियन थे। तो फिर बोले ये कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल टू कट शॉर्ट। तो पहले उन्होंने जो कोई उनके जासूस भेजे, वो सब प्लेयर के साथ में मिक्स हुए। तो प्लेयर ने उनको बताया कि बोले हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो सभी प्लेयर एक हॉल में जमा होते हैं, और वहाँ ये जासूस गए तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग हमिंग साउंड आता है, उसके बाद अलग से कुछ नहीं है। जब ज़्यादा उसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये सभी प्रैक्टिस के पहले ओंकार जप करते थे, और उसकी वजह से उनकी मन की एकाग्रता बढ़ती थी, साइकोलॉजिकल पूरा मन में शांति रहती थी, मन में कोई बुरे ख्याल नहीं थे। और इसी वजह से जो जैसा मैंने बोला मन की शुद्धि, तो मन की शुद्धि होने से वो सभी अपने अपने खेल में कंसंट्रेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अच्छी तरह से कंसंट्रेशन होने से मुझे जीतना है ऐसे नहीं है, तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छा करना है, यह सद्भावना उनके मन में तैयार होती थी, और उनका परफॉर्मेंस जो था वो अच्छी तरह से बड़ा अच्छा होने से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते। तो उसके बाद में फिर ओंकार के लिए अनेक लैबोरेटरीज में संशोधन हुआ, रिसर्च पेपर्स हुए। हमने भी 2-3 रिसर्च उसके ऊपर किए हैं कि ओंकार की वजह से बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होता है।
और दूसरा, अब यहाँ 2-3 साइकेट्रिस्ट मेरे दोस्त भी है, तो ओंकार जब हम हर एक पेशेंट से करवाते हैं, इंडोर पेशेंट के लिए सवेरे 1 घंटा योगाभ्यास करवाते हैं, उसमें 10 मिनट योगा ओंकार जब होता है और बाकी के भी योगासन होते हैं। तो आई विल शेयर, बिकॉज अभयदा एंड नवीन रैना एंड आई थिंक there were 2 more, I think they were left. So my usage of the doses of the drugs have come down to 20%. 80% I could cut down on the dosage or minimum dosage, no side effects, and my patients who were always complaining initially, जब मैं ज़्यादा डोसेज उनको कूल डाउन करने के लिए देता था, तो सभी लोग बोलते थे ये ज़्यादा सोते हैं। अगर आपने देखा मेरा हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर देखा बाहर, ये है मेरे सभी पेशेंट, मैं जब राउंड लेता हूँ तो उनको आधा घंटा पहले बोलना पड़ता है कि आप अपनी जगह आ जाइए, क्योंकि ठंडी हो तो धूप के लिए बाहर जाते हैं, गर्मी हो तो भी वो वहाँ रहते ही है, कुछ ना कुछ वजह से वो ग्राउंड में ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर योग का इफेक्ट है। तो ये जो ओंकार है, मैंने बोला कि ओंकार दुनिया में कैसे उसका प्रचार प्रसार हुआ और दुनिया के लोगों को कैसे उसका महत्व समझा, तो ये छोटी सी स्टोरी देखने के बाद में भी जाते हैं आगे ओंकार के बारे में। और अब ये ओंकार उसको कहाँ से तैयार हुआ है? ओंकार को आदि गुरु यानी पहला गुरु भी बोला है पतंजलि ने, और गीता में भी उसका एकाक्षरी ब्रह्म ऐसा उसका उल्लेख किया हुआ है। तो आपने जिन्होंने कुछ उपनिषद पढ़ा है, सृष्टि की निर्मिति, हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म, यूनिवर्स फॉर्म होने के, सृष्टि की निर्मिति होने के बाद में पहला तत्व जो है आकाश तैयार हुआ। आकाश यानी स्पेस, स्पेस में ही सब चीजें होती है। इफ देयर इज नो स्पेस यू कैन नॉट, कुछ भी आप तैयार नहीं कर सकते, किसी की भी निर्मिति आप नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेस यानी आकाश तत्व के स्थापना होने के बाद में पहला साउंड जो है वो ओंकार निकला है, और ओंकार को अनाहत नाद बोला हुआ है। आप में से सभी को अनाहत नाद और आहत नाद ये पता है? थोड़ा पता है। ओके, तो ओंकार ये अनाहत नाद, अभी जो भी कोई साउंड आता है, आवाज होता है, एक दूसरे तो पर टकराने से होता है। अनाहत नाद वो अपने आप होता है, अपने आप नहीं होता है, वो सृष्टि की निर्मिति से चला हुआ नाद है। नोबडी हैज, किसी ने उसको क्रिएशन नहीं किया है या कोई ये नहीं किया। वो नाद आप अगर जब ग्रहण करते हो, दैट इज रियल ओंकार का नाद समझना, सुनना है। तो वो कैसे करना है वो तो हम आगे देखेंगे, मगर ये ओंकार जो है, ओरिजिनल ओंकार जो है वो अनाहत नाद है। अब उसको बाकी हम जो बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो आहत नाद है, वो अनाहत नहीं है। और इस पवित्र आवाज, पवित्र नाद हर एक मंत्र में आपको मिलेगा। भारतीय संस्कृति में जो भी कोई धर्म है, भारतीय यानी हिंदू हो, मुस्लिम, जैन हो, सिख हो या बौद्ध हो, सभी ने ओंकार को महत्व दिया हुआ है। और सिखों में तो उसको बोला हुआ है, एक गुरु ओंकार एक गुरु, सतनाम एक ओंकार, यानी सत्य है ओंकार, इसे सत्यनाम यानी सत्यनाद नाम है। तो ये सब है। और ओंकार गणेश का, ज्ञानेश्वरी में उसका वर्णन किया है, ओंकार गणेश का रूप है। तो वो सब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हम देखेंगे।
ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वरी की पहला जो स्टांचा है वो भी है, उसको वर्स बोला हुआ है। वो क्या है? ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। इस यहाँ ओंकार को पहले नमन किया हुआ है कि ओंकार को बोला है स्वसंवेद्या। उसकी संवेदना स्व की संवेदना जहाँ हमारे होती है, यानी आत्मरूप में हम जब जाते हैं तो उस आत्मरूप को जानने वाला, वहां तक पहुंचे ले जाने वाला ओंकार के जिसको वेदों ने भी मान्य किया है, उस ओंकार को नमन करके ज्ञानेश्वरी की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर ने की है। वहां ये ओंकार को गणेश का रूप कैसा है तो उन्होंने बोला है अकार चरण युगुल, यानी दोनों पैर जो है वो आकार है, उसका पेट जो है वो उकार है, आगे वो जो आई है ढेरी उसकी पेट वो उकार है, और मकार महामंडल मस्तकाकारे, मकार के जो वाइब्रेशंस है वो आप मस्तक में यानी सर में उसको ये कर सकते हो, और उसी लिए वहाँ बोला है मकार महामंडल मस्तकाकारे। तो ये गणेश का रूप भी बताया हुआ है। तो ये जो है, अब ये इसमें ओंकार में अ उ और मो, ए यू एंड एन, ये तीन स्वर व्यंजन जो भी कुछ आप बोलोगे वो है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ मैंने एक कोष्टक दिया हुआ है कि ये अ उ म जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन जो बताए हुए तीन शब्द है, स्वर व्यंजन है, तो क्या है वो? ब्रह्मा विष्णु महेश, या उत्पत्ति स्थिति लय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ही कार्य है कि ब्रह्मा हमारे क्रिएशन के लिए, उत्पत्ति के लिए कार्य करता है, विष्णु हमारा पालन पोषण करता है यानी स्थिति रखता है, और महेश डिसोल्यूशन या लय का काम करता है, मृत्यु। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश या उत्पत्ति स्थिति लय, उसी को भूत वर्तमान भविष्य, ये तीनों भी काल जो है ये ओंकार की इसमें समाये हुए हैं, या इनको हम कह सकते हैं हमारी जो तीन स्थितियां हैं, हमारे अस्तित्व की तीन स्थितियां, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत, स्वप्न और निद्रा, अवेयरनेस, ड्रीम एंड स्लीप, ये भी ओंकार से दर्शाए जाते हैं। और लास्ट में तीन है, तो तीन गुण जो है त्रिगुणा, तीन गुण आपको पता है, तमस, राजस और सत्व, ये तीनों गुण हमारे ओंकार में ही समाये हुए हैं। तो इस तरह से जो तीन तीन चीजें यहाँ बताई हुई है वो ओंकार से आपको समझ में आती है। अब ओंकार का रिलेशन कुंडलिनी से भी लिया हुआ है। कुंडलिनी आपको पता है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुरुद्वार के वहाँ मूलाधार चक्र जो है बेस में, मूल यानी बेस आया है, वहां पर कुंडलिनी सुप्त अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में 3.5 चक्र लगाकर सोई हुई है। अगर हम ओंकार का जप करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, तो उस सुप्त शक्ति को जागृत कर कर कुंडलिनी जागृत हम करवा सकते हैं, और उसके लिए ओंकार का जप उच्चारण कैसे करना है ये भी हमें सीखना है। अगर सही ढंग से हमारा ओंकार का उच्चारण होता है तो इसीलिए इसमें शंकर षडानंद जो है, षडानंद नहीं, तो उसमें ओंकार का एक श्लोक दिया हुआ है जिसको हम ओंकार स्तवन या ओंकार नमन बोलते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। इसका मतलब है कि जो बिंदु से संयुक्त हुआ है जो ओंकार, उसका जो भी योगी, जो भी साधक, जो भी दृष्टा नियमित ध्यान करता है उसे क्या मिलेगा? कामदम कामदम मोक्षदम मोक्षदम च ओंकाराय ऐव। नमो नमः। यानी कामदम यानी ऐहिक और मोक्षदम यानी पारमार्थिक सभी सुख आपको मिलेंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल में और आगे भी देखेंगे। तो ओंकारम बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकार। ऐसे ओंकार को हम नमस्कार करते हैं, उसके शरण जाते हैं, ये यहाँ बताया हुआ है। तो ओंकार कैसे बोलना है? तो हमने देखा कि ये साउंड या वाइब्रेशंस जो होते हैं कि ओंकार इज ओरिजिन ऑफ द साउंड। जो भी शब्द हमारे हैं वो शुरू से ही ओंकार है। ओंकार हैज अ पावर coupled with a melody and scientific deliberations. Onkar can be recited with the minimum alteration on original sound and vibrations of the vocal cords. अब ये ओंकार कैसा बोलना है? तो हम इसके ऊपर हमारे श्वासों का, रेस्पिरेशन का कंट्रोल है। अगर उस कंट्रोल को हम बराबर समझ लेते हैं, जो हम हमारे संस्था में सिखाते हैं कि 10 सेकंड में ओंकार बोलना है, 5 सेकंड में सांस लेना है और 10 सेकंड में सांस छोड़ते हुए ओंकार बोलना है। अब ये कैसे करना है, ये थोड़ा मैं अभी प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, फिर बाद में हम सभी एक 5 मिनट तक ओंकार जब भी करेंगे। तो ओंकार में अ उ म है, पूरा आप सांस भर लो और सांस जब छोड़ोगे तो 2, 3 और 5, 2 सेकंड आपको अ बोलना है, 3 सेकंड उ बोलना है और 5 सेकंड मकार बोलना है। अब वो कैसे बोलना है? तो पूरा सांस लेने के बाद में आप थोड़ा सा ओठों को विलग कीजिए, अलग कीजिए, तो जो साउंड निकलेगा वो अपने आप आकार होगा। और धीरे धीरे अगर आप ओठों को बंद करना शुरू करोगे, ओठ जब मिटाल त्यावेळेस तो साउंड उस वक्त वही आवाज जो है, नाद जो है वो उकार में बदल जाएगा। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। और ओठ बंद करके खाली सांस छोड़ोगे तो वो जो वाइब्रेशन आएंगे वो मकार के होंगे। मैं 2 ओंकार बोल के बताता हूँ, आप मेरे ओठों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से बोलने में क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आप उसका पहले अनुभव लीजिए और फिर उसके फायदे के बारे में हम बात करेंगे। तो ओंकार करने के लिए आप सभी तैयार हो गए, आराम से बैठ जाइए। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें धीरे से बंद। आपका चेहरा, आंखें ढीली कर देना है। जबान, दांत ढीले छोड़ दीजिए। कंधों को ढीला कर दीजिए।
दोनों हाथों की उंगलियां पूरी शिथिल, रिलैक्स्ड। पेट के स्नायु ढीले छोड़ दीजिए। पैरों की उंगलियां उसको ढीला कर दीजिए। पूरा शरीर शिथिल हुआ है, मन शांत हुआ है। अब सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। हर एक सांस के साथ आपका पेट आगे पीछे होता है। पूरा ध्यान पेट की ओर, पेट की हलचल को अनुभव कीजिए। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों से निकालकर, पेट से निकालकर नथुनियों पर लाइए। नाकाच्या शेंड्यावरती मनाची एकाग्रता, प्रत्येक सांस का स्पर्श, every breath touches your nostrils. Experience the touch, feel of touch of air in the nostrils. अब पूरा मन और शरीर शिथिल, ध्यान पूरा नथुनियों पर। अब मैं ओंकार बोलूँगा, आपको मेरा मकार शुरू होता है तो आपको आपका आकार शुरू कीजिए, और मेरा मकार खत्म होगा तो आपका मकार शुरू होगा। तो पूरी देर तक आपको मकार के वाइब्रेशंस आइदर मेरे या आपके कानों में गूंजेंगे और उसका अनुभव आपको आएगा। मैं पहले ओंकार का स्तवन बोलता हूँ, मेरे बाद में आपको रिपीट करना है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नित्यं ध्यायन्ति ओंकाराय नमो नमः।
ओंकार के नाद से एक रूप होने की कोशिश कीजिए। पूरे शरीर में ओंकार के कंपन, वाइब्रेशंस ऑफ ओंकार ऑल ओवर बॉडी, फिगर ऑफ ओंकार बिफोर योर आईज, आंखों के सामने ओंकार की तस्वीर, मन में ओंकार के विचार, जबान पर ओंकार के स्वर, कानों में ओंकार की गुंजन, पूरा शरीर और मन ओंकारमय हुआ है, ओंकारमय हुआ है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखिए। प्रकाश की संवेदना, धीरे धीरे आंखें खोलिए। स्वरूपा कैसे लगा? हाउ वाज द? अनम्यूट होके बोलिए। सर बहुत 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 अच्छा लगा, वेरी नाइस। आई जस्ट रिमेम्बर दोज डेज ऑफ आवर्स. I am still practicing the same thing what you taught before 10 years, and it is really the same. Very nice, sir. Very good, very nice. Yes, sir. चना और जिन्होंने जो भी कोई आपको एक्सपीरियंस है शेयर करना है तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, शांत हो गया। छान वाटलं? एकदम छान वाटलं। जो पर्दे के अंदर है उनमें से कोई? रतन, प्रतिभा, वंदना। हो सर, खूप छान वाटलं. डोळ्यासमोर ओमचं चिन्ह सुद्धा दिसलं. खूप रिलॅक्स वाटतंय. रिलॅक्स वाटलं. सो दिस इज खूपच शांत वाटलं, म्हणजे मन विचारहीन झालं. एकदम शांत. ओके, हे ओंकाराचं सामर्थ्य आहे, कौशल्य आहे, मैग्नोमिनिटी आहे। ओंकार तुम्हें 11 ओंकार रोज बोला, आप अगर 11 ओंकार मिनिमम अगर बोलते हो, आपकी नींद बहुत बढ़िया होगी, और नींद बढ़िया होगी तो आपके बहुत से काम अच्छी तरह से होंगे। अगर नींद नहीं बराबर होती है तो हमारे पास बेंगे साइकेट्रिस्ट बहुत से लोग आते हैं कि नींद ही नहीं आती है, तो उनका हम ओंकार का जप करने से सवेरे शाम को भी हमारे सभी पेशेंट कुछ भजन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, और फिर बाद में हमारे स्टाफ के लोग उनसे एक 10 मिनट तक 21-31 तक ओंकार करवा लेते हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम, बिकॉज अभी तो मैंने आपको वक्त कम है इसलिए ओंकार के मेडिकल इफेक्ट्स नहीं बताए। आध्यात्मिक के बारे में तो बहुत आपने सुना है,
वो मोक्षदायी है, तीनों सातों जन्मों का, हमारे 7 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं वगैरह। मांडुक्य में तो खाली ओंकार ही है, हर एक जगह पर है कि ओंकार का सामर्थ्य कितना है, मांगल्य कितना है, उसके बारे उसकी शक्ति कितनी है, वो सब अनेक ग्रंथों में बताया हुआ, वेदों से लगाकर उपनिषदों से लगाकर पुराणों में सभी जगह बताया हुआ है। जब जब जैसे जैसा भी कोर्स में उसका ये आते जाएगा तो उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण भी मिलते जाएगा कि कहाँ कैसे बताया और कैसा उसका उपयोग हम कर सकते हैं थेरेपी के लिए। अगर आप कोई भी डिस्टर्ब आदमी है, डिस्टर्ब यानी खाली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकल इलनेस के लिए नहीं है। डायबिटीज हुआ तो भी आदमी डिस्टर्ब होता है, थायराइड हुआ या कोई भी बीमारी है। अगर मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मेरा भतीजा, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया था, बड़े 3-4 फ्रैक्चर उसके हो गए थे। वो हॉस्पिटल में था, तो उसके बाजू में भी एक लड़का, और वो मेरे साथ होने से योगाभ्यास नियमित करता था, तो वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे कुछ नहीं करना है तो ओंकार बोलता था। और उसके बाजू में जो पेशेंट था वो, उसको भी सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था, पैर को प्लास्टर वगैरह लगाया था, 2 महीना 3 महीना तो वहाँ रहना है। डॉक्टर कम से कम 15 दिन तो रखते हैं उसको, तो 15 दिन तक जब था तो दोनों के वुंड हीलिंग इतने फास्ट हुए कि इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये 10-12 साल पहले की बात है, 15 साल हो गए शायद, ज़्यादा हो गए, 15 साल भी ज़्यादा हो गए। तो उस वक्त डॉक्टर भी आश्चर्य, जब इतना लोग योग के बारे में इतना समझते नहीं थे, अगर हमारे ऑर्थोपेडिक मित्र ने कहा कि हाउ योर नेफ्यू हैज बिकम सो ऑल राइट विदाउट एनी प्रॉब्लम, नो कॉम्प्लिकेशंस, तो ये सब ओंकार का सामर्थ्य है, ओंकार का उपकारकता है, बोल सकते हैं कि इतना ओंकार ये होता है। अभी आपको कुछ शेयर करना है? अभी कल, हाँ, आपको एक बात समझा देते हैं, कल का लेक्चर 5:30 बजे से होगा, और अगर कल वक्त रहा तो मैं ओंकार के बारे में आगे भी जो कुछ है, क्योंकि ओंकार के थोड़ा ही मैंने 5-10 स्लाइड मेरे यूज़ की है, मेरे पास कम से कम 30-35 स्लाइड उसमें है, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। अभी अगर किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, और जिनको भी अगर आपको इंटरेस्ट है पूरा कोर्स करने के लिए, हमारे यहाँ कीर्ति मैडम है, शांति मैडम है, मीनल है, इन लोगों ने पूरा कोर्स किया है। पहले बैच के ये स्टूडेंट है, ज्योति दूसरे बैच की स्टूडेंट है, तो ये कल आपको बताएगी। पर मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये कोर्स करोगे तो बहुत आपके खुद की जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और ये जो अलग अलग बीमारियां हैं, आजकल इतनी बीमारियां हो गई है जैसे हम कोई पता भी नहीं कर सकता है कि कैसे कैसे बीमारी आई है। ये सभी बीमारियों का जड़ निकालना है तो योग थेरेपी इज द आंसर। Thank you, Abeda, and Thank you, sir. Thank you, Naveen sir. ji, for your comments. And I will appeal to all the doctors in the group. If the doctors take up this course and if they take it to the public, it will be more authentic, more useful, and we can give service to the society. एंड पीपल विल रिस्पेक्ट। यहाँ जब मैंने शुरू किया था तो यहाँ के जो लोकमत के व्यवस्थापक है वो हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करते थे कि अगर डॉक्टर जिनको शरीर के अंदर बाहर पूरी मालूमात है वो अगर योग का उपयोग करते हैं, योग अपनाते हैं, तो सचमुच योग हमारे लिए, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इतना
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो लोग अगर आते हैं तो लोगों के ऊपर इसका अच्छी तरह से इफेक्ट होगा। और ये हमारा जो एंशिएंट साइंस है उसके बारे में हम सभी को पूरी दुनिया में जो विश्व गुरु बनाने के हम सोच रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं। इतना बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और ज्योति आपसे कुछ बातें करें। Yes. Hello, everyone. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Sir has given a small description about that. I would say syllabus. I would say small क्योंकि बहुत vast है और sir ने बहुत short में आपको बताया है. So sometimes you will feel कि when you will observe like what sir is teaching, कि at a moment you will feel कि बस अब बहुत हो गया मेरे लिए. But sir will never stop to make you clear about your doubts. So इतना अच्छे से आपको clear करेंगे. It will definitely give you more knowledge. Sometimes at the end we feel कि हाँ हम लोग थोड़े से डॉक्टर बनने वाले हैं या बन गए हैं, though we are not the doctor. So definitely it helps us to go into the way where we can improve the health of the society. The way you have heard about the Omkar and all, everyone is aware of that, how we are chanting it, how it is giving the benefit. But to make it into the practice, it will give you the real benefit. So हमें society के साथ काम करते हुए, we have to develop all these aspects of what practice is with the people, and we have to like हमें पूरे सोसाइटी को बहुत अच्छा करना है, डिजीज फ्री करना है, बेसिकली मेडिसिन फ्री करना है. So being a doctor, rather than giving the medicine to the patient, I would say कि आप लोगों ने कुछ ऐसा ट्रीट कीजिए कि less medicine and more towards the yoga therapy. So definitely it is going to help. Thank you so much, sir. जो हमने जो सुना ओंकार के सारे benefits, I won't repeat each and everything, but definitely when you will attend the actual lecture, you're going to understand more concept about it. So again, thanks to everyone. I was in the second batch of the therapy, and it has definitely it has given us a lot more knowledge about the therapeutic yoga. Even earlier, my question was like, "Kya hoga? How it is going to help?" I was a instructor, just an instructor. So it has changed my mindset at looking towards the people. पहले हम लोग स्टैंडर्ड योगा हर किसी से करवाना, everybody is not able to do that. So हर किसी को किस तरह से हम अलग अलग उसकी प्रकृति के हिसाब से करवाना चाहिए, बेसिकली लोगों को करना चाहिए. We learn all those things. So I would suggest and request you कि आप लोग सारे अगर सर और मैम की गाइडेंस में करते हो तो definitely it's going to benefit you. Again, I would like to say thank you to each and every one of you for attending this session. Thank you, sir. कल और योगा ओंकार के बारे में जो भी कुछ और ज़्यादा मालूमात है कल मुझे देने की कोशिश करूँगा. आप कल भी आइए. कल 5:30 बजे से शुरू होगा. पल्लवी देंगे, अगर पल्लवी कासलीवाल उसका पहला नाम है, अगर आपने सुना होगा, जो 40 साल के ऊपर के, उन्हें एक बाल जादूगर थी बच्ची, मेरे बेटे की जैसी है, मेरे बेटे की उम्र की है वो. और उसने बाद में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है जादूगर से. वो पहले खाली जादू से इधर से उधर करती थी, अभी फिजियोथेरेपी से लोगों को रिलीफ देती है. तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हम कैसे खड़े रहे, कैसे बैठे, ये सब बारे में वो बताएगी. तो जरूर आप और आपके भी कोई दोस्त वगैरह है, सभी लोग उसमें आइए. 5:30 बजे का कल का वक्त है. वो 1-1.5 घंटा लेगी. बीच में जो कुछ टाइम बचता है उस वक्त मैं ओंकार के बारे में और थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा. धन्यवाद. और जिनको किसी को भी करना है, फीस के बारे में पूछना है कि क्या है, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर या मेरे व्हाट्सएप पर. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Hariom, sir. Hariom, sir.
Hariom sir. हरिओम सर. हरिओम सर. हरिओम सर.